Hello dear students, good morning to all. I hope all are present here. Those who have not marked in the WhatsApp group, please mark your attendance here and go and come for live class. जो स्टूडेंट्स WhatsApp ग्रुप में अटेंडेंस मार्क नहीं किए हैं, मार्क करो और आओ लिंक को, ठीक है? Yeah, those who are here, please mention your name on the comment box on your live chat. I hope you all are doing well. Yeah, some few students are present. Wait for some times. Let me know कितने स्टूडेंट्स डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट का कंप्लीट कर चुके और जो न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट 4 में जो कल दिया था, कितना स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके? प्लीज मेंशन योर नेम फर्स्ट. या गुड मॉर्निंग टू ऑल. Am I audible to all? Video and audio clarity is clear. Good. Subrat sir completed, very good. अभी तक मेरा पास 32 स्टूडेंट का ही आया है न्यूमेरिकल्स और जो वीडियो लेक्चर्स का नोट्स और असाइनमेंट 4. ठीक है, असाइनमेंट 4 आराम से कंप्लीट करो, टाइम ले जाओ, बट नोट एंड जो एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स दिया था वो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करो, ठीक है? गुड, वेरी गुड. और जो लोग अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, मुझे आज तक सबमिट कर दो, ठीक है? सो टुडे we are going to start a new chapter, that is your motion in a straight line, or chapter number 3 of CBSE. Chapter number 3, that is your motion in a straight line. What? Motion in a straight line. It is very important chapter and most interesting chapter. Okay, जितना तक भी अभी हम लोग पढ़े थे, जो यूनिट मेजरमेंट्स, वेक्टर्स, ठीक है, ये सब जो आप छोटे बच्चे टाइम में जैसे उड़िया में अ सीखते हैं नहीं, देन इंग्लिश मीडियम में ABCD जैसे हम सीखे थे, तो वह जितना भी हम सीखेंगे, जितना भी हम सीख चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. दैट इज योर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. अभी मींस फिजिक्स शुरू हुआ है, ठीक है? फिजिक्स का मजादार अभी शुरू होगा, अभी शुरू हुआ है आज का जो लेक्चर नंबर 1. और दीज आर द की पॉइंट्स. टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैकेनिक्स. दिस चैप्टर इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. ओके, the introduction part, and here we shall discuss that is your rest and motion and some basic terms. Okay, so it is called mechanics. The branch name is called mechanics. Mechanics. So students, from this lecture we are starting a new chapter. Okay, and the chapter will study as a motion in a straight line, or also called as rectilinear motion. Also called as rectilinear motion. Also called as rectilinear motion. So in our previous lectures, that is your chapter number 4, the part 1, the vector part, only vector part we have already completed. After the motion in a straight line, we can go through the projectile motion, that is your motion in a plane.
motion in two dimensions. So from this lecture we are starting, that is your motion in a straight line and some basic maths used in physics, ये हम सीखेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक मैथ्स होगा, बेसिक मैथ्स हम सीखेंगे कैसे फिजिक्स में यूज होगा, और यूज करके हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, ठीक है। गुड, ठीक है सब लोग, हाँ सब स्टूडेंट आ गए, गुड। तो लेट्स बिगिन द क्लास, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन वन डायमेंशन और 1D कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट करो क्योंकि वो साइड में बिल्डिंग काम चल रहा है तुम्हारा सीबीएसई का, ओके। तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है। सो फॉर दिस फर्स्ट वी अंडरस्टैंड इन द पेरिफेरी ऑफ फिजिक्स, okay, in the periphery of physics, in the subject of physics, what is mechanics? Now what is mechanics? तो हम जो फर्स्ट चैप्टर में we have already completed, that is your physical world unit measurements. What are the branches of physics? Mainly broadly classified into two types, one is classical physics, another is quantum physics, okay. तो mechanics is the special branch of physics that deals with the study about the rest and motion of a particle, the rest and motion of a particle, okay. Is the special branch. So in the periphery of physics or in the subject of physics, here we know that what is mechanics. Mechanics means it is the branch of special branch of science, branch of physical science that deals with the study about the rest and motion of a particle. Here we are going to study what is rest and what is motion. So mechanics means we see the object around us, we see the object around us and the things are moving, and the things are moving, things are moving. So things are moving, the term things are moving, we see the object around us and things are moving, something or that is this something. There are few things which are not moving, some things are moving or few things which are not moving. So if I put, suppose if I put water in a glass, suppose a glass है, if I put water in a glass, the water occupies some space, the water occupies some space, okay, but it is not moving. But we study what some other characteristics of this water, like it is pressing the walls of the glass, it is pressing the walls of the glass, some characteristic we will study. So that is also one topic of study. There may be motion of particles, there may be motion of particles, like number one, suppose water is flowing in a river, yeah, water is flowing in a river. The number two, air is blowing out, air is blowing out. Number three, the aeroplane moving in the sky, the aeroplane moving in the sky. So these we call motion, these we call motion. तो जितना भी हमारा नेचर सराउंडिंग में जो बड़ी मूविंग कंडीशन में है, some things are in moving condition or some things are not moving condition, that here we are going to study, that is your motion in one dimension. Or in this motion again we study how, again we study how. This is number one, suppose if it is going, suppose this is chuck, or if it is going this changing in position, changing in, we call it speed. जैसे एक ये जो चक है, जो उसका पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से बराबर, जो टाइम से बराबर टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम के हिसाब से वो चक भी चेंज हो रहा है उसका पोजीशन, तो वी कॉल इट चेंज इन मोशन, चेंज इन पोजीशन means we call it speed. Then how do we study that speed? How do you study that speed? This is one study.
when it is less, when it is more, which are the quantities involved, when it is more, when it is less, which are the quantities involved. We have developed a science for that. What science? The special branch of science. Then that was a very wide science. Again, we bifurcated it. So number one, where there should be change in the speed. Okay, where there should be change in the speed. One is calculation of speed. One is calculation of speed, and one is the cause. What is the cause behind it? One is calculation, how to calculate speed, and one is the cause. So when there is change, in this way we made many branches of this study about that things around us. So all this studied well. Also the forces or push is being applied even if water is not moving in the glass. जैसे मैं जो ग्लास का जो एग्जांपल दिया था, तो the forces or push is being applied even if water is not moving in the glass. So it is having a push on the wall. It is having a push on the wall. So sometimes the push is giving no motion. Sometimes the push is giving a motion like water flowing in the river. Like water flowing in the river. Then these things, then there are changes in the speed. In the speed. So all these things we have divided, we have classified into two categories. Into two categories. Means the mechanics, it is the branch of physics that deals with the study about the rest and motion of a particle. So physics has got many branches to study, and we have already completed the physical world, the unit and measurements, and that is the vectors. That is the vectors. So physics has got many branches to study the various physical significance. So now we'll study the mechanics. The most interesting topic, most interesting chapter, and most important chapter also. So now we'll study the mechanics, then we'll study light, we'll study the waves, we'll study the gravitation, we'll study the heat and thermodynamics, laws of motion, work, power, energy. So many topics in like the physics, in the physics. So now what we are studying? In mechanics we have classified into, that is the two types. Mechanics is divided into two types. One is statics and another is dynamics. One is static, another is dynamics. The broadly classified into two types. One is statics, another is dynamics. So now what are we studying? Now in mechanics we have classified two types, mainly broadly two types. In the physical, in the periphery of moving and not moving, when the particles or materials is not moving, but it is exerting force, but it is exerting forces at that time. What are the rules? ऑडियो वीडियो क्लैरिटी इज क्लियर ना? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ दिक्कत है क्या? आवाज दे रहे हैं? कुछ दिक्कत है क्या? ओके, वेरी गुड. So it is broadly classified into two types. One is statics, another is dynamics. Okay, and when the particles or material is not moving, but it is exerting force, it is exerting forces at that time. What are the rules? What are the calculations? All
this we will study in statics. Not moving, but applying force. Not moving, but applying force. मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आराम से समझ पाएंगे, ठीक है? Applying forces, not moving but applying forces. All this we will study in statics. Means body is at rest. Body is at rest. That is called the statics part. Now, if the objects are moving, that comes under dynamics. Objects are in moving. Objects are in moving. Object is at rest. Objects are in moving. That comes under the dynamics. So, in the moving material, we make our study into two parts. In our moving material, that objects are moving. So, in our moving material, we make our study into two parts. The dynamics is also divided into two types. Number one is kinematics. And number two is dynamics or kinetics. Number one is kinematics and number two is kinetics. Also called as dynamics, kinematics, one is kinetics. So in our chapter number 3, motion in a straight line or called as rectilinear motion. So you will study in kinematics. First, this chapter motion in a straight line based on the kinematics. Kinematics deals with the different quantities like position, speed, then change in speed means called acceleration. Position, speed, change in speed means called kya? Acceleration. And what are the relations between all them? Means here we do not discuss what is the cause of change of the speed. Or why a particle should stop. Here we do not discuss. Means without knowing the cause of motion. Here we do not discuss how, where the particle should stop. Here we do not discuss where, what are the cause of the change of the speed. We do not discuss. We simply study about the position, what is position, or how much time it will take to stop. Here we simply study how much time it will take to stop. Means here we shall discuss what is time, what is speed, what is acceleration, but without knowing the cause of motion. That is the part of kinematics. So how much its acceleration? So much. So when you take to stop, how much time it will take to stop? Means if you give its acceleration so much, so how much time it will take reach top to the building? If we give it certain acceleration, then how much in this change? So all these are problems studied in this kinematics. Okay, understood? Kinematics means without knowing the cause of motion. तो एक्चुअली काइनेमेटिक्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. दैट इज योर मोशन इन वन डायमेंशन. And then we study that is your dynamics part or kinetics part. Means here in dynamics or kinetics we go for cause of change in speed. Cause of
change in speed or knowing the cause of motion. Knowing the cause of motion. Only this is your first class, only introduction part. ठीक है? और you have already completed your 9th and 10th level. That is the basic things about the motion, the chapter motion. क्लास 9 में था ना मोशन चैप्टर, तो वहाँ पे जस्ट आप लोग स्टडी करते हैं, बट ये जो ब्रांच है वो ब्रांच के बारे में आप लोग उसको पता नहीं था। जब जो समर कोर्स किए हैं, समर कोर्स किए थे वहाँ पे प्रगति में, और थोड़ा इन लोगों का थोड़ा जस्ट आइडिया है, ठीक है? तो दैट इज योर काइनेटिक्स। यहाँ पे विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, बट हियर काइनेटिक्स, जो व्हाट इज द कॉज, चेंज ऑफ स्पीड। और इन काइनेटिक्स वी स्टडी द फोर्स, द न्यूटन बाबा का चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मेकिंग चेंज इन मोशन, द नोइंग और विद नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे जो काइनेटिक्स है, ये फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और फोर्स का यूनिट आप सभी लोग को मालूम है, दैट इज योर न्यूटन बाबा का चैप्टर है, ठीक है? न्यूटन बाबा का चैप्टर है काइनेटिक्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर you will study that is motion in 2D, then you can go to the chapter number 4, that is your laws of motion. तो कुछ मींस पोर्शन डिलीट किया है सीबीएसई, बट ऐसे भी जो डिलीट किया है, ऐसे भी हम लोग इसको इतना भी ब्रीफली नहीं पढ़ाते। वहां पे तुम्हारा काइनेमेटिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पीड, वेलोसिटी रिमूव कर दिया है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा हम मींस हमको जानना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, स्पीड वेलोसिटी क्या है, नहीं तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे? नहीं, थोड़ा हम पढ़ेंगे। जो डिलीट किया है डिलीट कियो, ठीक है? जो डिलीट किया है ठीक है, बट मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा और नीट आईटीजे ओईटी के लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो बोल रहे हैं सीबीएसई ना नीट जेईई मेन के लिए भी थोड़ा चेंज करेगा, बट फिर भी जो पार्ट है, पार्ट हमको जानना चाहिए। पार्ट में जो स्टडी है, जो ब्रांच है, हमको जानना चाहिए उसको, और हमको क्या स्टडी कर रहा है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है? कुछ फर्क नहीं है, पार्ट जानने के लिए भी कुछ फर्क नहीं है। क्या होगा? नॉलेज तो गेन होगा ना, कुछ नहीं है, ठीक है? तो मेकिंग चेंज इन पोजीशन, मेकिंग चेंज इन मोशन, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक्स पार्ट। तो मैकेनिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज स्टैटिक एंड अदर योर डायनामिक्स। और द स्टैटिक मींस बॉडी इज एट रेस्ट, objects in moving, it broadly classified into two types, number 1 is kinematics, number 2 is kinetics. So the cause of change in speed means the speed is increasing, the speed is decreasing, and it is pressing, and there is a displacement due to forces. The forces are doing so many things in changing the position, changing the speed and other things. Here we will discuss the speed is increasing, the speed is decreasing, and it is pressing, and there is a displacement due to forces. If I can apply force, I will apply force, then the body, the displacement, the position of body will displace from one place to another place due to forces. So forces are doing so many things in changing the position, changing the speed and other things. So when force is involved and we are doing our study, that study portion is known as the kinetics and also called as pure dynamics. 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 Means your force is involved. Okay. And what is force? What is the cause of change? So now this only the relation between position, speed, acceleration. This is the one part, relation between position, speed, and here we will study the part of another branch, that is your kinetics, or about the force. Here we have studied that is the relation between the position, speed, and relation between acceleration, relation between position, speed, acceleration. Means without knowing the cause of motion, here do not discuss what is the cause of motion, and here we will discuss how the cause or why the speed are changing, the speed are decreasing, the body is displaced
ड्यू टू फोर्सेस। अंडरस्टूड अप टू दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा रेस्ट एंड मोशन के बारे में, ठीक है। तो ब्रांच क्या है? स्टैटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, ठीक है। अंडरस्टूड अप टू दिस। कुछ डाउट्स है क्या? बोलो। ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है, कुछ डाउट्स नहीं आएगा। हाँ, गुड, गुड, वेरी गुड, नो डाउट। जो स्टूडेंट्स लेट में आ रहे हैं, और कॉलेज ओपन हो जाओ ना, इतना मारूंगा कभी भी सोच नहीं पाओगे। जल्दी आओ, क्लास टाइम में आओ, ठीक है, क्योंकि न्यू चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर। जब उसके नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, उसके बाद 2 और नेक्स्ट लेक्चर से ही पूरा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। जब हम बेसिक मैथ्स यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन पार्ट जो यूज करेंगे, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस, ये सब हम यूज करेंगे, तो वहां पे हमको पता चलेगा, ठीक है। तो गुड, वेरी गुड। तो ये सब क्या था ना, तुम्हारा मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन था। तो और क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बीएससी बीटेक में आप लोग इन हायर स्टडी में जाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, ठीक है, देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आप लोग स्टडी करेंगे। बट फिर भी हम क्लास 11 में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था जस्ट क्या इंट्रोडक्शन था। तो स्टूडेंट्स, जो रेस्ट एंड मोशन, तो ये जो चैप्टर है, तो हम क्या नहीं रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम स्टडी करनी चाहिए। ये स्टैटिक्स था ना, ये डायनामिक्स था, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैं उसका थोड़ा डेरिवेटिव मींस जस्ट लिख दिया था, नहीं, ठीक है, क्या क्या था वो थोड़ा नोट डाउन करो रफली, ठीक है। तो जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स, रेस्ट एंड मोशन, इसे आप लोग क्लास 12 में भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस आर इन मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। बट यहां पे क्या पढ़ेंगे हम लोग ना, बॉडी, एक फाटिक की, एक ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो रेस्ट एंड मोशन जो है, रेस्ट एंड मोशन, तो हमारा दुनिया में मैं बोला, क्या बोला अभी तक? The not moving, some objects are not moving और some objects are moving, ठीक है। तो देखो, मैं जो एक चक, मैं कहां पे खड़ा हूं ना, आर्क के अंदर, आर्क रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के साथ, उसका एक एक्सिस है ऐसे, मींस आर्क लाइक स्फीयर, ठीक है। थोड़ा डायग्राम इतना नहीं होता है मेरा, ऐसे, ठीक है। तो आर्क रोटेट कर, आर्क इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यहाँ पे सन है, ये आर्क है। तो आर्क में मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मैं बोला स्टूडेंट्स, ये जो चक है, मैं से उसको पकड़ा हूं, ठीक है। तो ये जो चक है, वो चक कौन सा पोजीशन में है? तो आप सभी लोग बोले नहीं सर, रेस्ट पोजीशन में है। क्या बोले? रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। सपोज ये चक को मैं जस्ट इतना पोजीशन ऐसे चेंज कर दिया, मींस देखो ये चक यहाँ पे था, उसका पोजीशन ये था रेस्ट, तो टाइम के बराबर, टाइम के हिसाब से उसका पोजीशन ऐसे चेंज हुआ, ठीक है। मींस क्या, उसका जो पोजीशन था वो पोजीशन चेंज किया, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे देखो ये बॉडी रेस्ट में है अभी, तो उसको मैं जस्ट ऐसे कर दिया। अब क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं बोलेंगे सर ये चक मोशन में, ठीक है। तो देखो ये पोजीशन में था, रेस्ट में, जब पोजीशन चेंज कर दिया तो क्या हुआ ना, मोशन कंडीशन में। देख ये चक मोशन में है। सपोज मान लो ये हमारा आर्क है, आर्क में मैं खड़ा हूं, आप भी जो मेरे वीडियोस देख रहा हूं, लाइव क्लास कर रहे हैं आप लोग, एक आपका रूम में, आपका जो रूम है, रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप भी देख रहे हैं ना ये चक रेस्ट में है, मैं भी देख रहा हूं चक रेस्ट में है। जब ऐसे पोजीशन चेंज कर दिया ना, चक इन मोशन, चक आर इन मोशन। सपोज मान लो ये आर्क है, और सपोज मून में एक पर्सन है, मून में जो भी है, तुम्हारा एक फ्रेंड है मून में, वो देख रहे हैं, क्या देखेगा वो ना, जब हम आर्क उसका जो एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो
तो अर्थ इज रोटेटिंग और अर्थ इज रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जब अर्थ मूव कर रहे हैं तो हम जितना भी ऑब्जेक्ट हम भी तो मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, यस और नो। तो जब ये देखेगा कौन जो मून में है और मून में जो तुम्हारे फ्रेंड्स है जो एक्स भी जो भी है, वो देखेगा कि ये चौक मोशन में है, क्योंकि अर्थ मोशन में है। वो क्या हो रहा है, उसका जो पॉइंट जो पोजीशन में है वो देख के क्या, वो देख रहे हैं अर्थ इज मूविंग। तो अर्थ मूविंग रोटेट कर रहे हैं मींस ये चौक भी क्या हो रहा है, मूविंग कर रहा है। जितना ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स भी मूव कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये जो एग्जांपल्स में थोड़ा बाद में डिराइव करूंगा। देखो सपोज मान लो क्या देखेंगे जी, ये जो रेस्ट एंड मोशन को हमको रिप्रेजेंट करना है तो एक टर्म को हेल्प होना चाहिए, एक टर्म हमको हेल्प होना चाहिए। दैट टर्म इज कॉल्ड द रेफरेंस। हमको रेफरेंस जानना चाहिए, रेस्ट एंड मोशन में है या पड़ी नहीं है, तो हमको जानना चाहिए रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली रिमूव कर दिया है, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा अभी जे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो अभी जो एक्चुअली जो रेस्ट या मोशन में है, एक्चुअली हम बॉडी जो रेस्ट में है तो मैं डिराइव करूंगा एक एग्जांपल के बाद। एक्चुअली रेस्ट में है ना, कौन सा रेस्ट में है, सपोज रेस्ट में तो कौन सा रेस्ट में है। मान लो सपोज एग्जांपल मान लो तुम्हारा सपोज लॉकडाउन खुल गया, ठीक है, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया और जो कोरोना के लिए वैक्सीन बन गया है, वैक्सीन आ गया और लॉकडाउन खुल गया, ठीक है। तुम लोग क्लास 10 एग्जाम दिए, ठीक है, क्लास 10 एग्जाम का रिजल्ट अभी आएगा, ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स। तो ठीक है, चलो कुछ नहीं, तो रिजल्ट अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो 10 एग्जाम के बाद आप लोग सोचे थे कि हाँ 10 एग्जाम के बाद मेनली कुछ स्टूडेंट्स हैं मुझे बोले हैं कि मैं 10th क्लास के बाद मींस इतना सो जाऊंगा मींस पर रेस्ट, ओनली रेस्ट करेंगे। तो उसका समर कोर्स क्या था स्टूडेंट्स, मींस क्या जो क्लास के जो एग्जाम के बाद मैं पूरा सो जाऊंगा, ऐसे बहुत ज्यादा सोऊंगा, ऐसे बोल रहे थे। तो ये समर कोर्स क्या था, प्रगति में समर कोर्स आ गया, वहां भी टाइम नहीं मिला। टाइम के बाद सडनली 4-5 डेज के बाद हम मींस रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दिए। तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट सोचे थे नहीं लॉकडाउन मींस क्लास 10 के बाद हम कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाओ, हम पूरी या भुवनेश्वर या जो भी है लेकर घूमने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। अभी डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट, तो सोचेंगे हाँ हम तो सोचे थे ये क्लास 10 के एग्जाम के बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो घूमने के लिए जाएंगे, उस टाइम में लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, बहुत पैंडेमिक सिचुएशन आ गया, तो सब शटडाउन लॉकडाउन हो गया। इतना लॉकडाउन हुआ है आप सभी को मालूम है, फिर अनलॉक 1 चल रहे हैं, शटडाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया कि कल से लॉकडाउन खुल जाएगा। तो अब सब सोचे थे, क्या सोचे थे ना, मैं पूरी भुवनेश्वर जाकर घूमने के लिए आ जाएंगे एक बार रिफ्रेशमेंट के लिए, क्योंकि क्लास 10 एग्जाम अभी भी दिए। तो जब सोचे थे आप लोग, ठीक है, माइंड को देखो, आप सोचे थे, तो जब ये डायरेक्ट कर दिया कल से लॉकडाउन खुल जाएगा, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया वैक्सीन आ गया है, कल से डिक्लेयर, तो तुम लोग सोचे थे या तुम लोग बोले जब तुम्हारा पेरेंट्स को, पापा मम्मी को बोले, और हम लोग तो घूमने के लिए डिसाइड किए थे, तो चलो कल से हम जाएंगे घूमने के लिए। कहाँ घूमने के लिए, ना पूरी भुवनेश्वर घूमने के लिए पास आ जाएंगे, ना तो वाइजैक जाएंगे, जहाँ भी जो भी है, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट में डिसाइड कर दिया, आप लोग टिकट कर दिया, वो मेन से रेलवे भी सब सर्विस ओके हो गया, ठीक है। तो आप पेरेंट्स के सपोज आप बिलोंग्स टू भवानीपटना और जूनागढ़ धर्मावण जो भी है ना, भवानीपटना मान लो, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन और डे आफ्टर टुमारो जो भी है वो दिन आप डिसाइड किए और आकर क्या भवानीपटना स्टेशन जो है, भवानीपटना स्टेशन में, ठीक है, तुम्हारा टिकट हो गया भवानीपटना टू भुवनेश्वर, क्या है, लिंक एक्सप्रेस, हीराखंड एक्सप्रेस है। तो आप सभी लोग कहाँ पे ना, हीराखंड एक्सप्रेस में और लिंक एक्सप्रेस में जो है हीराखंड एक्सप्रेस में जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा स्टेशन ना, भवानीपटना स्टेशन, बीटीपी, शॉर्ट में लिख दिया बीटीपी स्टेशन। तो आप पेरेंट्स के साथ में, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म में तो बैठने के लिए बहुत मींस सीटेबल अवेलेबल है,
तो जाकर वहां पे बैठ गए। तुम्हारा 3 लोग है, जो लोग तुम्हारे 2 पेरेंट्स, पापा मम्मी और तू, ठीक है, जाकर वहां पे जाकर बैठ गए, ठीक है। तो सपोज हमारा तो यहाँ पे हीराखंड एक्सप्रेस एक ही चलता है, मींस चल रहे हैं मेनली भवानीपटना से, और एक दूसरा कोई स्टेशन भी जो पैसेंजर बता रहा है वो भी चल रहा नहीं, तो जाकर वहां पे बैठे। तो तुम्हारा स्टेशन रात सपोज 8 बजे है, ठीक है, और तुम जाकर शहर कितना 35 या 40 कितना तक भी जाकर पहुंच गए तुम स्टेशन में, ठीक है, शाम 8 बजे है भवानीपटना स्टेशन में, तो जाकर पहुंच गए। तो जाकर वहां पे बैठे और एक तुम्हारे साइड में जो बैठे और वो भी एक फ्रेंड्स है जो भी है, तो वहां पे जाकर बोले ना हीराखंड एक्सप्रेस गया, मींस अभी तक आया ना, अभी तक कितना बजे आएगा तुम लोग पूछिए, ठीक है, या ट्रेन लेट है या क्या है, डिस्कस के इंक्वायरी नहीं करके तुम्हारे जो साइड में हो उस साइड को जो पर्सन आदमी हो वो आदमी को तुम लोग पूछिए, ठीक है। तो स्टोरी है देखो, तो जब पूछे ना क्या बोला ना हीराखंड एक्सप्रेस नहीं आया अभी तक, ठीक है। हीराखंड एक्सप्रेस देखो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के सामने क्या रहेगा ना रेलवे ट्रैक रहेगा, या ये तो सबको मालूम है ना, उसके बाद रेलवे ट्रैक, तो तुम जाकर वहां पे बैठे ना, ये हीराखंड एक्सप्रेस अभी तक नहीं आया, अभी सपोज एक्स ट्रेन जो भी है, सपोज ये हीराखंड है और सपोज मान लो तिरुपति एक्सप्रेस जो भी एक है, मान लो सपोज सिंपल, वो क्या बोला आदमी ना अभी ये जो प्लेटफॉर्म है अभी तिरुपति क्रॉस किया, मींस तिरुपति चला गया जूनागढ़ से जो भी जा रहा है, ठीक है। वो क्या बोला ना, वो जो रेलवे ट्रैक है वो क्रॉस किया, तुम रेस्ट पोजीशन में हो, तो तुम रेस्ट पोजीशन में, वो क्या बोला ना तिरुपति में क्रॉस किया, और कितना देर के बाद हीराखंड एक्सप्रेस आएगा, हीराखंड ट्रेन आएगा। तो देखो तुम जो पोजीशन में बैठे हैं, कहां पे प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, तो प्लेटफॉर्म में तुम क्या है ना रेस्ट कंडीशन में है, तुम रेस्ट में चुपचाप बैठे हैं तुम लोग, 3 जन, ठीक है, तो वहां पे क्या है रेस्ट कंडीशन। तो तुमको लेकर जो ट्रेन ट्रैक में कौन क्रॉस कर रहा है ना, एक के बाद ट्रेन क्रॉस कर रहा है, मींस तुम वो जो प्लेटफॉर्म में है, प्लेटफॉर्म में तुम रेस्ट पोजीशन में है, बट ये रेलवे ट्रैक में कौन मोशन में है ना ट्रेन मोशन में है, ट्रेन क्रॉस कर रहा है, बात को समझो, ट्रेन क्रॉस कर रहा है। तो उसके बाद तिरुपति अभी चला गया, क्रॉस किया, उसके बाद हीराखंड आएगा, तो कितना देर के बाद हीराखंड आ गया, ठीक है, जाकर तुम लोग हीराखंड में बैठ गए, कहां पे तुम्हारे जो बगी है S10 S5 जो भी है वहां पे तुम लोग बैठ गए, ठीक है। तो वहां पे जाकर बैठकर कोई तुम्हारा जो सीट है वो सीट पे तुम सो गए, ठीक है, तुम जाकर बैठ के नींद आ गया, सो गए हैं, ठीक है। तो ये ट्रेन चल रहा है, तो यहाँ पे जो केस है वो केस में तुम प्लेटफॉर्म में रेस्ट में थे, ठीक है, बट तुम्हारा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन में कौन क्रॉस कर रहे थे, कौन मोशन में था ना ट्रेन मोशन में था, तो प्लेटफॉर्म में तुम लोग रेस्ट में थे, बट तुमको क्रॉस करके कौन मोशन में था ना ट्रेन मोशन में था, बात समझ में आ रही है। तो कितना देर का 2 आवर और 3 आवर के बाद तुम लोग एक मींस 2 और 3 आवर्स के बाद तुम्हारा नींद सपोज ये हो गया, ठीक है, तो तुम उठ गए और दो साइड में तुम्हारे जो साइड में है, ठीक है, देखो वहां पे तुम लोग बैठे, ठीक है, बैठने के बाद तुम जो ट्रेन में बैठ गए, तो ट्रेन में सेकंड केस में आ गया, तुम जो बॉगी में बैठे वो बॉगी रेस्ट कंडीशन में तुम लोग बैठे, ठीक है, वहां पे जो बैठ गए, बट प्लेटफॉर्म में तुम रेस्ट थे, बट जिसके बाद 2 और 3 मींस वहां पे बैठ गए, वहां पे रेस्ट में मींस तुम्हारा बॉगी में तुम रेस्ट में हो गए, तो ट्रेन क्या करेगा, तो तुम वो ट्रेन के जो जहां पे बॉगी में बैठे वो बॉगी में क्या तुम रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, प्लेटफॉर्म में थे, तो कौन मोशन में था, ट्रेन क्रॉस करके चल रहा, तो 2-3 के बाद तुम उठ के और तुम्हारा जो साइड वो जो बैठे हैं, और भाई ना क्या तुम्हारा ये जो अभी जो स्टेशन कौन सा स्टेशन आएगा तुम लोग पूछिए, ठीक है, तुम ट्रेन में बैठे तो कौन सा स्टेशन आएगा तुम लोग पूछिए, वो क्या बोला ना अभी आएगा रायगढ़ स्टेशन, क्या अभी आएगा रायगढ़ स्टेशन आएगा बोले, ठीक है, रायगढ़ स्टेशन आएगा, तो बात को समझो,
तुम एक कंडीशन में, जो बॉगी कंडीशन में तुम रेस्ट में थे, तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म मोशन में है। तुम लोग को सोच रहे हैं, और तुम यहाँ पे सोचेंगे, तुम लोग वहां पर भी सोचेंगे कि ना प्लेटफॉर्म के बाद प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ये उसके बाद क्या आएगा ना, रायगढ़ स्टेशन आएगा। तो प्लेटफॉर्म के बाद प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो तुम तो वो क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म क्या मोशन कंडीशन में। तो देखो समझो, ये पोजीशन रेस्ट में थे, तो उस ट्रेन मोशन में था, ट्रेन के बाद एक टर्न बाद मींस तुम लोग सोचे हां ट्रेन मोशन में है। जब तुम लोग बैठे बगी में, तो क्या ना प्लेटफॉर्म मोशन में है, प्लेटफॉर्म के बाद प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। सोचेंगे तुम लोग, यही फिजिकल सिग्निफिकेंस। जब ये जो चक, ठीक है, ये जो चक है, तो ये जो चक में देखा जाए ये रेस्ट कंडीशन में है, तुम लोग भी देख रहे हैं ये रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, तुम लोग भी देख रहे हैं ये रेस्ट कंडीशन में है। बट जो मून में है वो क्या देख रहे हैं ना, ये चक आर इन मोशन। तो बच्चों यहां पे हम सीखेंगे, और यहां को हमको जानना चाहिए, और हमको पता चल रहे हैं जी ये जो ऑब्जेक्ट उसका कुछ रेफरेंस है। जैसे तुम्हारा ये जो प्लेटफॉर्म जो था, प्लेटफॉर्म में तुम जो बैठे थे, तो प्लेटफॉर्म तुम्हारा रेफरेंस था, प्लेटफॉर्म तुम्हारा रेफरेंस था। जब तुम बैठ गए ट्रेन में, तो ट्रेन का तुम्हारा बॉगी रेफरेंस आ गया, तुम्हारा बॉगी रेफरेंस आ गया। तो देखो रेस्ट एंड मोशन को जानना चाहिए, और उनको रिप्रेजेंट करना है, तो हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना चाहिए। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ही हमको रेस्ट एंड मोशन को हमको पता चलेगा। तो देखो यहां पे देखो, जो चक था, मैं भी देखा रेस्ट, आप लोग भी देखा रेस्ट, बट मून में जो फ्रेंड्स है वो क्या देख रहे हैं ना, आर्क रोटेट कर रहे हैं, ये लोग भी मोशन में है। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में नहीं है मींस एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। तो जितना भी हमारा बॉडी में, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा आर्क में, उन लोग मींस एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। कौन सा रेस्ट में है ना, रिलेटिव रेस्ट में है। क्या है ना, रिलेटिव रेस्ट में। कौन सा रेस्ट, तो जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट, जितना भी है हमारा ऑब्जेक्ट बॉडी, वो जो आर्क में हम लोग है, वो आर्क रोटेट कर रहे हैं, मींस हम लोग भी रोटेट कर रहे हैं। तो उनको क्या देखा ना, ये चक भी रोटेट कर रहे हैं, आर्क रोटेट कर रहे हैं मींस, ठीक है नहीं, बात समझ में आ रहा है नहीं। तो ऐसे हमको रेस्ट एंड मोशन को जानना चाहिए, तो ये हमको क्या करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना चाहिए। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जब हम मींस हम लोग को ये जो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन गलत है, वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। जे बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो बॉडी रेस्ट में है मींस ये एक्चुअली रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। ये कौन सा रेस्ट में है ना, रिलेटिव रेस्ट में है। कौन सा रेस्ट में है ना, रिलेटिव रेस्ट में। तो हमारा जितना भी बॉडी हमारा आर्क में है, सब लोग कौन सा रेस्ट में है ना, रिलेटिव रेस्ट में। क्योंकि देखो रिलेट कर रहे हैं हम, आर्क रोटेट कर रहे हैं मींस हम भी रोटेट हो रहे हैं। तो वो क्या देख रहे हैं, तो ये मोशन में देख रहे हैं, हमको क्या देख रहे हैं ना, हम रेस्ट में। तो जैसे तुम्हारा यहाँ पे जो बॉगी में बैठे थे, तो बॉगी में बैठे थे, दोनों को दोनों देख रहे हैं, तुम भी रेस्ट, तुम भी रेस्ट, दोनों को आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो रेस्ट में है। तो वो रेस्ट में था, तो क्या आ रहा था, प्लेटफॉर्म आ रहा था। तो फर्स्ट केस में तुम प्लेटफॉर्म रेस्ट में था, बट मोशन रेल था, ट्रेन था, बट तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मींस तुम जो बैठे थे वहां पे तुम बॉगी में रेस्ट थे, बट क्या मोशन में था ना, प्लेटफॉर्म रेस्ट में था। तो रिलेटिव हो रहे हैं, मोशन का रिलेटिव हो रहा है। तो हम लोग कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, हम लोग कहां रेस्ट में है ना, रिलेटिव रेस्ट में है। कौन सा रेस्ट में है, रिलेटिव रेस्ट में। बात समझ में आ रही है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों, हमको जानना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, मींस एक ऑब्जर्वर एक बैठा है एक जगह में और ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर सिट एंड मेक्स an observation. An observer sit and makes an observation. तुम यहां पे बैठे थे, बैठकर तुम ऑब्जर्व करते,
ने ये प्लेटफॉर्म आएगा, ये सब ये ट्रेन आएगा, ये ट्रेन आएगा, तुम कहाँ जा रहे हो बच्चों, तुम कहाँ रहे हो, ऐसे पूछ रहे नहीं। तो तुम जहाँ पे बैठे हैं तुम रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। जब वहां पे ट्रेन में थे तो ट्रेन में बैठे तो ट्रेन तुम्हारा बोगी जो है, बोगी तुम्हारा रेफरेंस हो गया। मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास कर रहा हूँ, तुम लोग एक घर में एक रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम जहां पे बैठे हैं तुम्हारा रेफरेंस है। तुम जहां पे बैठ कर तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक चीज क्या है, चीज क्या हो रहा है, ठीक है। गुड। हाँ, बेसिक मैथ्स का क्लास कब होगा? बेसिक मैथ का क्लास 1-2 लेक्चर के बाद, नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस स्पेस में पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक मैथ्स आएगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स के क्योंकि इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैलकुलेशन मेथड में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। धीरे धीरे आराम से जाएंगे, हड़बड़ी में। तो देखो जहां पे बैठ के तुम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो घर में बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्जर्व करिए उदित सर क्या पढ़ा रहे हैं, देखो लाइव क्लास में लिख के नोट डाउन करो, समझो, ये नहीं तो तुम्हारा वो पॉइंट रेफरेंस आ गया। मैं क्या बोला, तुम लोग कहां पे मैं बैठा, मींस कहां पे तुमको मीट किया, नहीं कि कोई भी स्टूडेंट को मैं तुमको पहचाना नहीं, मैं एक्चुअली तुमको मीट किया कहां पे, मार्केट में, और तुम कहां पढ़ रहे हो, नहीं मैं प्रगति कॉलेज में पढ़ रहा हूं, तो प्रगति कॉलेज इज द रेफरेंस। तो किसको डिनोट किया ना, तुम प्रगति कॉलेज को, तो प्रगति कॉलेज इज द रेफरेंस। बात समझ में आ रहा है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको जानना चाहिए। तो रेस्ट मोशन के लिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हेल्प हमको जानना चाहिए। जो बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, तो रेफरेंस। अप टू दिस क्लियर? बात समझ में आया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जर्वर, एक जहां पे भी खड़ा है, बैठा है, और वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अप टू दिस क्लियर? अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे, जैसे तुम देखो एक ऐसे स्लाइडिंग मींस प्लेन है, वहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो प्लेन, ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे था, ये रेस्ट में था, मींस उसका ये रेफरेंस है। जब मूव करेगा रेस्ट और मोशन, तो रेफरेंस को लेकर ही मूव करेगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो इतना तक क्लियर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना, ऑब्जर्वर बैठा है और ऑब्जर्व कर रहा है, तो जहां पे बैठा है, जहां पे खड़ा है, तो उसका वो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। One is inertial frame of reference, another is non-inertial frame of reference. What? One is inertial frame of reference. Number one is inertial frame of reference. तो देखो समझ, inertial किसको बोलेंगे? देखो यहाँ पे एक बॉस है, ये बॉस में तुम बैठे हैं, बॉस रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो देखो साइड में जो एक पर्सन दिखा ना, एक जो आदमी है वो रेस्ट में है। जब ये मोशन हो गया, ठीक है, मोशन हो गया, तो क्या बोलेंगे ना, वो भी मोशन करेगा, बॉस के साथ जो भी है वो भी मोशन कर रहा है, वो सोचेगा जो अनदर पर्सन। तो रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, constant velocity, if it is constant or uniform velocity। देखो रेस्ट में था बस, जब वेलोसिटी पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो वो फ्रेम को क्या बोलेंगे ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका डिटेल्स नहीं है तुम्हारा, तुम लोग बीएससी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मेरा प्लेलिस्ट के जाके भी तुम लोग बीएससी चैनल जो है, मैं बीएससी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया हूं, तो वहां पे भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका डीप कांसेप्ट आप लोग पा जाओगे, ठीक है। तो मेरा प्लेलिस्ट जाकर बीएससी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो भी देख पाओ। तो ओनली कुछ नहीं, प्लस 2 में जानो, मींस पता चलो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हैं, तो ये बॉस
कांस्टेंट वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहे हैं तो उसकी क्या बोलेंगे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे यहां पे स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है ये पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हैं तो क्या बोलेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नंबर 2 नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल क्या बोलेंगे यहां पे एक बॉस है वो बॉस सपोज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहे हैं। क्या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस एक मींस टाइम के बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो रहे हैं मींस क्या होगा और इट एक्सीलरेट्स। क्या बोल पाएंगे और इट एक्सीलरेट्स। एक्सीलरेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ा रहा है ना घटा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इट एक्सीलरेट्स मींस एक्सीलरेट्स फॉर्मेशन होगा जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो तुम्हारा रिमूव कर दिया है फिर भी डेफिनेशन को याद रखो। मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोलूंगा उस टाइम में ये कांसेप्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो कौन सा न्यूमेरिकल्स में इनर्शियल कौन सा न्यूमेरिकल्स में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज होगा उस टाइम में। वहां पे एक तुम सीडो फोर्स इसी लिखते हैं सीडो फोर्स वो सीडो फोर्स हम स्टडी करेंगे। पीसीडो नहीं सीडो बोलते हैं PSEUDO सीडो फोर्स बोलते हैं वो सीडो फोर्स हम स्टडी करेंगे आगे स्टडी करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना कांस्टेंट वेलोसिटी में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं दैट इज योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इट एक्सीलरेट्स दैट इज योर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है तो जस्ट कॉन्सेप्ट सब याद रखो। तो क्लासिफिकेशन मोशन को कैसे हम किए जो मोशन को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग पढ़े हैं ना वेक्टर्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन हम पढ़े थे नहीं ना वेक्टर्स इन 1D 2D एंड 3D वेक्टर्स इन 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल इससे पढ़े थे नहीं। तो यहां पे भी क्या पढ़ेंगे नंबर 1 डायमेंशनल मोशन 1 डायमेंशनल मोशन नंबर 2 डायमेंशनल मोशन then number 3 dimensional motion। थ्री डायमेंशनल मोशन तो वन वेक्टर्स इन 1D पढ़े थे ना एक एक्सिस एक मींस जो भी वेक्टर एक एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो ऐसे भी यहां पे सपोज जो भी एक्सिस में सपोज ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं और वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं और जेड एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो वो मोशन क्या ये जो तीनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो भी एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेगा वो 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे एक बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो कौन सा एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे तुम्हारे ये चक में से ऐसे फेंक दिया तो जाकर सडन हाइट में फिर फॉल डाउन हो गया तो क्या स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में क्या मींस क्या वाई डायरेक्शन में मूव किया है ना नहीं। तो एक ही चीज को और एक ही जो एक्सिस है वो एक्सिस में स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। जो भी एक्सिस में मूव करेगा आगे उसका हम ब्रीफली डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ब्रीफली उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन ये चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो 2 डायमेंशनल क्या होगा ना दो एक्सिस में सपोज ये y ये x तो कहां पे ना प्लेन में xy प्लेन ये है तो xy एक प्लेन में जो मोशन करेगा जो बॉडी मींस ऐसे
कैसे आएगा ना, सपोज देखो एक बॉल को मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, कैसे थ्रो कर रहा हूं ना, ये एक्स एक्सिस है, मींस ये जो बॉल है, ये बॉल ऐसे मूव करेगा तो ऐसे जाकर ऐसे आएगा, है ना नहीं, तो ये कौन सा ना xy प्लेन में मूव किया, तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम स्टडी करेंगे दैट इज योर मोशन इन ए प्लेन। जो वेक्टर के बाद जो था तो चैप्टर 4 में, तो ये हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन इन 1D के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा जाता है, इसलिए मैं वेक्टर्स वहां पे स्टॉप कर दिया और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट कर दिया। ओके, बात समझ में आ रहा है अभी? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा ना, एक सर्कल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता है, तो ये प्लेन में एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो क्या है, सर्कुलर मोशन। क्या है, सर्कुलर मोशन। तो क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन, देन सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ये सब आएगा। तो सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब हम स्टडी करेंगे 2 डायमेंशनल 2D मोशन में हम स्टडी करेंगे। आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, ठीक है, ये सब हम स्टडी करेंगे 2 डायमेंशन में, ठीक है। 3 डायमेंशन क्या होगा पता चलेगा, ऑब्वियसली 3 एक्सिस रहेगा ना, ये x, ये y, ये z एक्सिस। कैसे, तुम्हारा जो एक मींस बार फ्लाइंग कर रहा है, उसका जो डायरेक्शन है y डायरेक्शन, x z डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन है, वो फ्लाई कर रहा है एक बार, ठीक है, पक्षी नहीं। तो तुम्हारा देखो जो एक घर का एक कॉर्नर को देखो, ठीक है, कॉर्नर में x y z एक्सिस है, तो वो भी 3 डायमेंशनल मोशन हो पाएगा। तो तीनों एक्सिस में जो मोशन मूव करेगा दैट इज योर 3 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन हम स्टडी करेंगे, देन 2 डायमेंशनल मोशन हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन स्टडी करेंगे, बट इतना तुम्हारा नहीं है, मींस कोर्स सिलेबस में ब्रीफ नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, आगे आप लोग बीएससी बीटेक में आप सब कुछ पढ़ेंगे। तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल, तो इसलिए 1 डायमेंशनल मोशन दैट इज योर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, also called as 1D motion, motion in 1 dimension। तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो हो गया, देन 2 डायमेंशन क्या है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब हम स्टडी करेंगे, बढ़िया चैप्टर सब, ठीक है। देन उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। तो ये था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो और एक चीज आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या आता है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, हम खुद एक मींस वहां पे देखो, जैसे क्या तुम्हारा अर्थ मूव कर रहा है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अर्थ इज ए स्फीयर, एरिया ऑफ द अर्थ और स्फीयर, एरिया ऑफ द अर्थ और स्फीयर लाइक ए स्फीयर है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हम आर्क का रेडियस क्या मापते हैं हम लोग, ठीक है, का फॉर्मूला वैल्यू क्या है ना, 6400 किलोमीटर। वहां पे हम पुट करेंगे तो एरिया समथिंग कितना आएगा, तो क्या एरिया किलोमीटर में आएगा, तो क्या किलोमीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना, समथिंग किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो एक्चुअली चीज क्या बोल रहे हैं फिजिक्स में, जो अर्थ मूव कर रहे हैं रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये सन का जितना आसपास में वो ज्यादा डिस्टेंस में ज्यादा एरिया को लेकर मूव कर रहे हैं, कौन, अर्थ। तो उसी हिसाब से अर्थ कितना ज्यादा डिस्टेंस लेकर मूव किया, तो अर्थ जितना ज्यादा डिस्टेंस और ज्यादा एरिया को लेकर मूव कर रहे हैं, तो अर्थ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वाला ऑब्जेक्ट और ऐसे वाला को ऑब्जेक्ट और बॉडी को पॉइंट बॉडी और पॉइंट ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन एक्चुअली होगा तुम्हारा बुक हिसाब से, इफ द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। तो जैसे तुम्हारा क्या, मैं 5.6 का है फुट, 5.6 का, मैं 5.61 किलोमीटर रन कर रहा हूं, बात समझो, 5.6 फुट है, मैं 1 किलोमीटर में रन कर रहा हूं, तो 5.6 फुट उसके हिसाब से 1 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो जितना तुम्हारा ओन साइज है उसके साइज से ग्रेटर देन हो रहा है,
तो मैं खुद को मैं क्या बोल पाऊंगा ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल पाऊंगा। क्या बोल पाऊंगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हम बोल पाएंगे, क्योंकि जो रिवॉल्व्स अराउंड द सन तो उसका ज्यादा डिस्टेंस लेकर एरिया को लेकर मूव कर रहा है, तो उसका जो साइज है कितना 6400 किलोमीटर उसका रेडियस है, और एरिया कितना आएगा समथिंग, तो उसी हिसाब से सन से ज्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो आर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलेंगे? हाँ, तो यहाँ पे जो मैं 5.6 फुट है और तुम लोग सपोज 5.8 की 5.4 है फुट, तुम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्या है वो ग्रेटर देन मूव कर रहे हैं तुम्हारा ऑन साइज में, तो तुम खुद एक क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो पाएगा। तो तुम्हारा पोजीशन में, तुम्हारा ऑन साइज में ग्रेटर देन जो है उसको ज्यादा तुम लोग रेफरेंस कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा ना, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes by distance much greater than its own size in a reasonable duration of time, that is called the point object। तो वहां पे r के पॉइंट ऑब्जेक्ट हो पाएगा, ठीक है, तो खुद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो पाएगी तुम्हारे हिसाब से कंपेयर करोगे तो दैट इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये सब क्या था? डेफिनेशन था, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, आप सभी लोग मालूम है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक दो बेसिक टर्म्स आएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 5 मिनट ले रहा हूं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सपोज मान लो ये क्या है ना, तुम्हारा होम, ठीक है, और ये क्या है ना, प्रगति कॉलेज। प्रगति कॉलेज थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा इसे ड्रा कर दिया हूं, है बहुत बड़ा कैंपस है। तो तुम लोग सपोज यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है, और तुम तो एडमिशन ले चुके हैं, तो तुम जो क्या तुम्हारा जो टीसीपीसी आएगा, जो क्या क्या जो सर्टिफिकेट सब आएगा, तो प्रिंसिपल सर आकर वहां पे एडमिशन काउंटर में तुमको देना पड़ेगा। तो देखो गवर्नमेंट रोड बना है, ऐसे लेकर ऐसे बढ़िया चुना, तुम्हारा घर चुनागढ़ धर्मगढ़ जो भी है कि कंटामंजी नुआपड़ा जो भी है, ऐसे एक रोड बढ़िया रोड बनाया है, ठीक है, रोड बड़ा है, तो एक्चुअल पाथ है, ठीक है, तो एक्चुअल रोड है। तुम सब लोग नहीं ये रोड में ले जाएंगे, हमारा पापा क्या बोले, मैं एक शॉर्टकट रास्ता मुझे मालूम है, मैं डायरेक्ट जाकर प्रगति में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो क्या है ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये कौन सा पोजीशन तुम्हारा? इनिशियल पोजीशन, बट ये तुम्हारा क्या है ना, फाइनल पोजीशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में जो एक्चुअल पाथ कवर किया हम लोग, means the actual path covered from the initial to final, that is your turn distance, that is the turn distance। क्या बोलेगा? distance, the actual path, actual length covered by a body from initial to final position, or the shortest path of a body from initial to final position, that is your displacement, that is your displacement। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसका आएगा डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब हम पढ़ेंगे। देन हम बेसिक मैथ्स को जाएंगे। बेसिक मैथ्स क्या है ना, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये नया चैप्टर आएगा, ये नया टॉपिक तुमको बहुत नया नया लाएगा, ठीक है, वो सब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन, रेस्ट एंड मोशन, एंड तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या था ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, और हियर वी विल स्टडी ओनली द काइनेमेटिक्स पार्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज योर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, उसका जो फार्मूला सब आएगा, देन बेसिक मैथ्स 2 क्लास रहेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ओके। तो अप टू दिस इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट ना, कुछ कहां पे डाउट्स है बोलो, 1 मिनट में खत्म कर देंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया ना। तुम लोग ब्रेकफास्ट, कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ब्रेकफास्ट करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करो, नहीं तो फ्रेश करके थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है। जिसको फील करो, इश्क मोहब्बत हो जाएगा। मैं बोला था प्रॉब्लम सॉल्व करना है बच्चों, मैं जितना प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, दे रहे हैं असाइनमेंट्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करो फर्स्ट, प्रॉब्लम 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 सॉल्व करो, खुद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मेरा डायलॉग को याद करना पड़ेगा, ठीक है।
तो जितना भी अप टू वेक्टर्स आज सब कंप्लीट कर दो, जो जो कंप्लीट नहीं कर चुके, और उसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट का मैं नोट्स दूंगा, शाम तक नोट्स दे दूंगा, ठीक है, वो कंप्लीट करके वो अपडेट कर देना है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, देखेंगे स्पीड वेलोसिटी ये सब देखेंगे, देन बेसिक मैथ्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ऑल हैव डन गुड जॉब, पेशेंस में पढ़ाई करो, घर में बैठ के मुस्कुराए के पढ़ाई करो, खाना पीने के साथ पढ़ाई करो, कूल माइंड में पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा खेलो, कुछ रिफ्रेशमेंट माइंड करो, ठीक है, और फिजिक्स भी पढ़ाई करो, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है तुम्हारा पढ़ाई करो, ठीक है, तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ठीक है, तो ठीक है, चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, तो स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, मास्क देखो, मास्क पूरा पहन के जहां पे भी बाहर जा रहा है मास्क पहन के पूरा जाओ, ठीक है, सैनिटाइजर रखो और घर में रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके, हैव ए गुड डे।